Yes, yes, yes. Very good afternoon, students. Wish you happy Wednesday, and I hope you are doing great at your home. This is your host, Mr. Vinod Mahale from ICA EduSkill Pune. As you know, we used to do regular activities in our institute, like like industrial visits, guest lectures from the industry expert, monthly mock interview sessions, Talika Boss, Excel Ka Dawn contest to improve your skills and knowledge for your bright career. Due to chronic situation, we are doing all activities through online. We are with you, committed to give a best training. Today, we are doing a guest lectures on setting, achieving goals effectively. These sessions we are doing after 2 years. These sessions can help you to achieve your goals, career plans quickly, fastly. I would like to introduce today's expert, Mr. Sumit Singh Arora. Sumit Singh Arora has been a learning and career development partner to 50,000 professionals over the last 25 years, where he worked with college students, corporate professionals, and managers to become more productive in their work and grow in their career. He is my mentor. He has featured on various TV channels in career sessions and has trained 5,000 plus career guides across the country. He is a key educational enthusiast. In the last 5 years, he has partnered with 3,000 plus parents and educators to facilitate holistic development of children and create a joyful learning ecosystem. He is a double graduate, one in engineering, one in education. He is a certified mentor from City and Gates, UK. He has founded an organization named The School Matters to assist educators and parents. Today he is going to discuss about setting, achieving goals effectively. Students, this session, as I told you, can your plans can help you to achieve goals fastly. Please keep stay tuned, ask your questions through chats, through as per the instruction by the sir. I would like to go to this session and begin these sessions. Okay. Good afternoon, everyone. Are you all here by choice or because you had no other choice? आप सब अपनी मर्जी से यहाँ पे हैं कि आपकी मर्जी नहीं चलती इस वजह से? विनोद सर ने कहा इस वजह से. If you are all here by choice, let me know in your chat choice. अगर आप यहाँ पे अपनी मर्जी से हैं, choice से हैं, तो let me know in the chat by writing choice in the chat. Let me see a few choices here. And if you are here by choice, you must be here because you are here for a certain reason. एक लॉजिकल रीजन की वजह से आप यहाँ पे होंगे. एंड द लॉजिकल रीजन कुड बी मेनी. या तो आपको लगता है इसका आपको फायदा होगा, इस वजह से आप यहाँ पे हैं, और यू थिंक बिकॉज दिस वुड बी समथिंग विच वुड हेल्प मी इन माई फ्यूचर लाइफ, या फिर इमोशनल रीजन हो सकता है. यू कुड बी हियर बिकॉज यू नो कुछ तो भी मजा आएगा, वैसे तो बोर ही हो रहे हैं, क्या करना है. So there could be an emotional reason or a logical reason why you are here. And if you are here by choice, you would be open. You would be here ready to get engaged, to listen, to do certain things, और आप कुछ करने के लिए, कुछ interaction करने के लिए तैयार होंगे. And what will be the result of it?
और इसका रिजल्ट सिर्फ ये होगा कि यू वुड बी एबल टू सी, गैदर सर्टेन इनसाइट्स, यू वुड बी एबल टू लर्न सर्टेन थिंग्स, और उन चीजों को आप उपयोग भी कर पाएंगे. सो if you are here by choice, you are open to listening, you are open to learning, you are open to challenging and discussing a few things, and you would be open to noting down certain learnings, and maybe you would be here to take it up and take it ahead in your life, in your actions, right? And if you are here not by choice, अगर आप और कुछ काम नहीं था इसलिए आ गए हैं, या फिर विनोद सर ने कंपलसरी बोला था इस वजह से आ गए हैं, और यू आर जस्ट हियर पता नहीं क्यों, सो डेफिनेटली यस, आपका एंगेजमेंट थोड़ा कम होगा, आई नो, पर कोशिश मैं ये करूंगा कि आई वुड ट्राई एंड बिल्ड दो रीजंस कि आप यहाँ पे जो आए हैं वो रीजंस आपका क्या है, कैसा है, और क्या फायदा हो सकता है, एंड देन आई विल कम टू द टॉपिक. I'll just display the screen in front of you, and then we will begin our discussion for the day. This is what we are here for, setting and achieving goals effectively. And let me take you directly to the agenda कि आज हम करने क्या क्या वाले हैं. और ये बेहद जरूरी है इस वजह से क्योंकि I have all adults in the room, close to around 30-35 people, and all these adults want to really know the why behind it and the what behind it. कि क्या कराने वाले हो, कितना समय कराने वाले हो, और क्यों करा रहे हैं. So let's talk about the agenda कि हम क्या कराने वाले हैं और कितना समय कराने वाले हैं. So there are going to be 4 things which we are going to do. The first thing is we are going to explore how to set smart goals. गोल्स सेट करना है तो स्मार्ट गोल्स कैसे सेट करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. दूसरी चीज चेक करेंगे कि हमारे गोल्स अलाइंड हैं क्या, कि हमारे गोल्स एक सर्टेन डायरेक्शन में जो हम करना चाहते हैं, हमारी जो लाइकिंग है, हमारा जो विजन है हमारे लिए उसके साथ है क्या. तीसरा हम देखेंगे कि हम हमारे गोल्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं क्या, या प्रायोरिटाइज कैसे करना चाहिए. सो इफ देयर आर मल्टीपल गोल्स इन लाइफ तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए क्या है, और बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट लाइफ में हो सकती हैं. सारे लोग एक दृष्टिया नहीं होते हैं, नॉट एवरीबडी इज सिंगल फोकस्ड, एंड हेंस वी हैव टू लुक एट प्रायोरिटाइजेशन कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कम इंपॉर्टेंट क्या है, और आपकी क्या है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिएट एन एक्शन प्लान फॉर ऑल ऑफ दिस. सो ये हमारे दिन का एजेंडा है, और जो हमारा दिन है वो अराउंड 60 to 90 मिनट्स का टाइम है. दैट इज समवेयर अराउंड 1:30. Today it is Wednesday, 12 o'clock. By 1:30, before your lunch, we plan to break, we plan to stop this day. So if you are okay with this, अगर ये एजेंडा ठीक है, ये समय ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे की डिस्कशन शुरू करते हैं. So if you are okay with this, give me in the chat that you are okay with this, and give me an order to continue. Shall I continue from here ahead? If you have 90 minutes of your time, if you would like to discuss all this, you should be here for the next 90 minutes. Grab a pen, grab a paper, have something in your hand to make notes. या आपके मोबाइल पे भी आप नोट्स बनाना चाहें तो you can keep that ready. But keep certain things ready which you could note down and you could discuss. आगे बढ़े साहब. Can I have in the chat go on? अगर आप चैट में लिखते हैं go on या continue, so I would bring in the next important part of our discussion. Wow. Thank you, Akash. Thank you, Sneekanti. Thank you, Bhavika. Thank you, Madhuri. Thank you, everyone. Thank you, Saili. Thank you, Tejas. So आगे बढ़ते हैं साहब. Small things से शुरुआत करते हैं कि is really goal setting important? इस बात के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इस बात के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं. I know you have been in lockdown, so lockdown से ही बात शुरू करते हैं. How many people in this lockdown have watched more web series than any time in their life? आप में से कितने लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी से ज्यादा वेब सीरीज इस लॉकडाउन के पीरियड में देखी है? जरा सच जवाब दीजिएगा, चैट में डालिएगा. वेब सीरीज अगर आपने इस लॉकडाउन के पीरियड में पूरी जिंदगी में जितनी वेब सीरीज नहीं देखी थी उससे ज्यादा वेब सीरीज देखी है, या आपने पहले जितनी देखते थे उससे ज्यादा वेब सीरीज या यूट्यूब पे वीडियोस या एंटरटेनमेंट आपने अपने मोबाइल पे बहुत ज्यादा किया है, बहुत ज्यादा गेम्स खेले हैं. कितने लोग ऐसे हैं? जरा सच लिखिएगा. मैं भी उनमें से एक हूँ.
मैंने भी उतनी वेब सीरीज कभी नहीं देखी थी जितनी अब वेब सीरीज मैंने इस लॉकडाउन में देखी है. So let me see how many of you are here who have seen more web series, more YouTube videos, more entertainment in your lockdown period as compared to the days before. Jaldi se. So Atharva is there, Sonali is there. Yes. Anybody else? Okay. So many of you. Yes. Thank you. So ये क्यों होता है या इसके पीछे का रीजन क्या है या ये ऐसे कैसे हो गया, उसकी एक छोटी सी बात करते हैं विथ नेचर. नेचर में ऐसा क्या है, या ये सब कुछ नेचुरल है क्या, या मेरी आदत बुरी है क्या, हुआ क्यों, हुआ कैसे, उसकी बात करते हैं सर. सब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ किसान का. आपने एक फार्मर को देखा होगा, उसको अपने खेत के अंदर धान्य उगाना है, उसको अपने खेत के अंदर अनाज उगाना है. एंड टू ग्रो हिज क्रॉप व्हाट डज ही डू, he put some seeds in the soil. वो खेत को जोतता है, उसके अंदर कुछ सीड डालता है, पानी डालता है, इंतजार करता है कि बीज थोड़ा बड़ा हो. then he put pesticides, he does all the controls to make it a plant. but imagine कीजिए अगर कोई किसान अपने खेत के अंदर कुछ नहीं बोता है, उसका खेत रेडी है, उसके अंदर उसने कुछ नहीं बोया है, बारिश आई और बारिश गई. आपको क्या लगता है, उस खेत में कुछ उगेगा या कुछ नहीं उगेगा? what would happen if the farmer does not put any seeds there and the rain comes and the rain goes? Will there be something in the field or will there be nothing in the field? अगर आपको लगता है something in the field होगा तो लिखिए क्या होगा, और अगर आपको लगता है nothing on the field होगा तो जरा चैट में टाइप कीजिए nothing in the field. अगर किसान खेत के अंदर कुछ नहीं बोता है पर बारिश होती है और बारिश गुजर जाती है, सो उस समय खेत के अंदर कुछ होगा, कुछ उगेगा या कुछ नहीं उगेगा? इफ यू थिंक समथिंग विल ग्रो, व्हाट विल ग्रो वो लिखिए. उसमें कोई सीड नहीं बोया है, और अगर वो कोई सीड नहीं बोता है तो अगर आपको लगता है कुछ भी नहीं उगेगा तो टाइप नथिंग इन द चैट. लेट्स सी व्हाट योर व्यूज आर अबाउट इट. देखते हैं कितनों का बैकग्राउंड खेती से है. हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट द फार्मर्स डू? Okay, so there are a few answers coming in. Nothing will grow. What grass? Grass. Nothing. Grass. Thank you. So nice of you. देख लीजिए साहब, मैंने जमीन में, फार्मर ने जमीन में कुछ भी नहीं बोया. No seeds were put, yet grass came out of it. Now, do you think this grass is something which I can eat, which we can use? Is it very useful thing? Not really, right? जानवरों के काम का है, बट हमारे काम का तो नहीं है यार. हमने घास खाना अभी नहीं शुरू किया है, राइट? नथिंग विल ग्रो इज रॉन्ग. समथिंग विल ग्रो एंड दैट समथिंग इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द फार्मर. कुछ ना कुछ तो उगेगा, क्या उगेगा पता नहीं. बिल्कुल उसी तरह लॉकडाउन के पीरियड के अंदर अगर मैंने कुछ बीज नहीं बोए तो कुछ ना कुछ तो मैंने उस समय का किया. क्या किया? तो वेब सीरीज देखा, यूट्यूब पे पिक्चर्स देखे, गप्पे मारी, चैट किया, सोशल मीडिया पे अपना टाइम इन्वेस्ट किया, कुछ ना कुछ किया. और अगर मैंने वहां पे कुछ सीड्स बोए होते, अगर मैंने कुछ डिसाइड किया होता, तो शायद मैं उस डायरेक्शन में काम करता, शायद मैं उस डायरेक्शन में ज्यादा समय देता. समथिंग वेरी सिमिलर इज व्हाट वी कॉल एज अ प्रिंसिपल इन लाइफ विच रियली हेल्प्स अस टू वर्क इन आवर डे टू डे लाइफ. और ये प्रिंसिपल ये है कि अगर आपके मन को, इफ यू डू नॉट टेल योर माइंड हाउ मच टाइम यू हैव, यू कंज्यूम द एंटायर टाइम. अगर आप अपने मन को ये नहीं बताते हैं कि आपके पास कितना वक्त है कोई काम करने के लिए, तो मन पूरा का पूरा वक्त ले लेता है. इट कंज्यूम्स द एंटायर टाइम विच यू गिव टू द माइंड, राइट? यानी कि अगर आप वर्किंग करते हैं या कॉलेज जाते हैं, अभी तो नहीं जा रहे हैं लॉकडाउन में, पर पहले जब जाते थे, सो इफ यू वर गोइंग टू कॉलेज, हाउ मच टाइम डिड यू नीड टू गेट अप एंड गेट रेडी? सुबह उठने के बाद कितने समय में तैयार हो जाते थे कि यू कुड गो टू कॉलेज? जस्ट टाइप इन मिनट इन द चैट, आपको कॉलेज जाने के लिए सुबह उठने के बाद कितना वक्त लगता था रेडी होने में? टाइप कीजिएगा चैट में. देखना चाहूंगा कि आप दिन में कितना समय तैयार होने में लगाते हैं. जस्ट टाइप इन मिनट्स, हाउ मच टाइम डू यू नीड टू गो टू कॉलेज? नॉट ड्यूरिंग लॉकडाउन, बिफोर लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ. कॉलेज जाने के लिए, तैयार होने के लिए आपको कितना वक्त लगता था? वाओ, आई हैव 20 मिनट्स, हाफ आवर, 60 मिनट्स, राइट?
So depending upon your style of how you want to get ready or your options in the house, डिपेंडिंग ऑन दैट 15 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक का समय लोगों ने चैट पे डाला है, 45 मिनट, हाफ एन आवर, वंडरफुल. नाउ बेस्ड ऑन ऑल दिस आई हैव वन स्मॉल क्वेश्चन नाउ कि आप संडे वाले दिन, जिस दिन कॉलेज नहीं जाना होता है, कितने देर में तैयार होते हैं? हाउ मच टाइम डू यू रिक्वायर to get ready on Sunday, the day when you do not have to do anything, you do not have to go to college, you do not have to go anywhere. I know many of you have the answer, sir. हम तो फिर Monday को ही तैयार होते हैं. We get ready only on a Monday. Very, very true, sir. If I do not have an agenda for the day, if I do not have to do something, I really take a lot of time. और फिर मेरा हर काम धीरे धीरे होता है, right? If that is true, it proves that we have that in our mind. ये एक नेचुरल भावना है कि अगर मुझे मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, अगर मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, तो आई विल डू समथिंग विच विल टेक मोर टाइम. वेरी वेरी ट्रू. आपने ये भी सुना होगा, इफ यू डू नॉट हैव अ गोल, यू विल फॉलो दोज हु हैव अ गोल. अगर आपके पास में आपका खुद का कोई एजेंडा नहीं है, तो आप वो करोगे जो दूसरों का एजेंडा है या जो दूसरे करना चाहते हैं. आपने अपने कॉलेज लाइफ में, लॉकडाउन के पहले, फिर से एक बार बात करता हूँ, अगर किसी ने कहा आज शाम को क्या कर रहा है, तो आपका जवाब आया पता नहीं, कुछ नहीं. व्हाट आर यू डूइंग टुडे इन द इवनिंग? आई डोंट नो, नथिंग स्पेशल. बोलता है चल मेरे साथ चलते हैं, लेट्स गो एंड हैव सम पार्टी, लेट्स गो टू कैंप, आराम से बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, और क्या. एंड यू से ओके चलते हैं. एंड व्हाट हैपेंड? You did not do what you wanted to do, but you did what your friend wanted to do, and he wanted a partner or she wanted a partner, and you went along. और आप उनके साथ चले गए. गलत कुछ नहीं है, दोस्ती निभाई है भाई, नहीं. But is this दोस्ती really important which you want to do is a question mark which you have to ask yourself. और ये क्यों हुआ? ये इस वजह से हुआ क्योंकि आपका आज शाम का गोल प्लान्ड नहीं था. अगर आपका आज शाम का गोल प्लान्ड होता, तो आप शायद चेक करते मेरा गोल इंपॉर्टेंट है कि इसका गोल इंपॉर्टेंट है, और फिर डिसाइड करते क्या करना चाहिए या दोनों चीजें कैसी करनी चाहिए. इट इज प्रैक्टिकल कि आप दोनों चीजें भी कर सकते हैं. साहब, एक चाय वाले ने मुझे बहुत अच्छी चीज सिखाई. नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की बात नहीं कर रहा हूँ. सो मैं एक चाय वाले के पास एक कप चाय पी रहा था, और चाय पीते पीते मैंने उसे ऐसी सवाल पूछा, यार ये रोड किधर जाता है? I was having a cup of tea on a street corner and I asked that tea person, where does this road go? और उसने मुझे सवाल पे उल्टा सवाल पूछा. उसने जवाब नहीं दिया, पुणे का शायद बंदा था. क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछा. He asked me a question on question, where do you want to go? आपको किधर जाना है? और मैं भी मस्ती के मूड में था. मैंने कहा जाएंगे ना कहीं पे, I'll go somewhere. And the answer which the चाय वाला gave me was, सिर्फ आप कोई भी रोड ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है? Then take any road, how does it matter? बहुत बड़ा ज्ञान दिया चाय वाले ने. That if I do not know where I have to go, every road can take me there. अगर मुझे ये नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, तो मैं किसी भी रोड पे चल पड़ूं, हर रोड मुझे कहीं ना कहीं तो पहुंचा देगा. If I do not know what my goal in life is, whatever I do is good. Isn't that a wonderful thing to be? Yes. But what will I become then? पर मैं आगे जाके बनूंगा क्या, ये मुझे नहीं पता होता है, और ये मेरे हाथ में नहीं होता है. बिल्कुल ऐसा ही होता है स्कूल लाइफ में, कॉलेज में, जब हम टीचर से बोलते हैं टीचर मुझे गाइड करो, मुझे कुछ तो बनना है. टीचर पूछती है क्या बनना है? आप बोलते हो सर कुछ तो बनना है, आप गाइड करो. एंड द टीचर गाइड्स यू, और टीचर आपको गाइड करती है कुछ तो भी, और आप कुछ ना कुछ बन जाते हो. बट इज दैट व्हाट यू रियली वांटेड टू बी? क्या आप वाकई में वही बनना चाहते थे? ये सवाल कई बार 20 साल बाद वापस आता है. नहीं, मैं पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, बट प्रैक्टिकली 20 years later दिस क्वेश्चन कम्स बैक एंड हॉन्ट्स कि क्या वाकई में मेरे को अकाउंटिंग सीए करना था, या वाकई में मुझे क्या साइंस लेना था, और मैं आज यहाँ तक पहुंच गया हूँ. एंड दैट इज समथिंग व्हिच वी हैव टू बी अवेयर ऑफ. सो I give you 4-5 examples of why goals are important in life, right? First thing, like the farmer, if you don't sow seeds, if you don't take care of it,
weeds will grow automatically. अगर आप बीज नहीं बोओगे, अगर आप कुछ डिसाइड नहीं करोगे एक्शन लेने के बारे में, तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में होता रहेगा, अच्छा या बुरा, काम का या बेकाम का. Something would keep happening and you might not like that. So that's point number one. Point number two, remember, if you do not have any goal in life, whatever you are doing is life. सब चलता है, right? And that is something which is bad. तीसरी चीज, your productivity goes down, your efficiency goes down. क्योंकि आपको मालूम है बहुत समय है, कुछ भी नहीं है करने के लिए, तो आप एक चीज को बड़ा लंबा 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 करते रहते हैं और आलस आ जाता है. एंड दैट इज व्हाट मेक्स अस लेजी. और फिर जब वॉर का वक्त आता है, जब कुछ करने का वक्त आता है, तो आलस टेक ओवर कर लेता है. एंड दिस इज समथिंग व्हिच वी ऑल हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट. प्लीज रिमेंबर, व्हाट यू डू इन नेट प्रैक्टिस हैपेंस व्हेन यू गो ऑन द पिच. क्रिकेट खेलने वाले सारे दोस्त यहाँ पे और फॉलो करने वाले वो सारे मित्र जो क्रिकेट नहीं भी खेलते होंगे, रिमेंबर व्हाट यू डू इन नेट प्रैक्टिस. जो आप नेट प्रैक्टिस में करते हो, जो आप एक्चुअली नहीं कर रहे हो किसी के सामने, बट तब जब कोई देख नहीं रहा है तब कर रहे हो, वही चीज आपकी पर्सनालिटी बनती है और वही चीज आपकी रियल लाइफ में आपके सामने आ जाती है अपने आप. सो whenever you are not doing something very consciously, be more conscious about it और उसको बहुत अच्छे से करो, तब आप रियल लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करो. ठीक. So this is why goals are important. Now let me bring to you a small action point. Do you dream? Do you have goals? आप लोगों के ड्रीम या गोल्स कुछ हैं क्या? कुछ तो होंगे, राइट? हाँ, मैं उन ख्वाबों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन ड्रीम्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो रात को सोने के बाद आते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज ड्रीम्स विच कम व्हेन यू स्लीप. मैं उन ख्वाबों की बात कर रहा हूँ जो आपको रात भर सोने नहीं देते. आई एम टॉकिंग अबाउट दोज ड्रीम्स विच डू नॉट लेट यू स्लीप एट नाइट. यानी वो चीजें जो आप करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप कई बार बेचैन रहते हैं. Are there certain things in your life which you really want to do? So what I want you to do now is to type in the chat your top one goal. आपके जीवन का कोई एक ऐसा गोल जो है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, वो मैं कुछ टाइप करना चाहता हूँ कि आप टाइप करें आपके चैट में, और फिर हम इस डिस्कशन को आगे ले जाएं. इसको हम देखें कि हम किस तरह से we can make this discussion more effective. Wow. So I have Swapnali who says, want to be a successful person. Very good. You could type one goal, you could type two goals, whatever you want to, but quickly type a goal, one of your top goal in chat, and I would love to hear and to see them in the comments, whatever goal you have in your life. Let us see a few goals as example from these people, and then we will take this discussion further. फिर इस discussion को आगे ले चलते हैं. Okay, waiting for your answers. To earn lot of money. Wonderful. और कोई गोल? To become successful, to earn lot of money. खुद का टैक्स ऑफिस करना चाहते हैं, फार्मर बनना चाहते हैं. Awesome. Great. So I have some responses which are coming. I want to be expert in finance. I want to become an accounts manager, to be independent. Wonderful. So these are awesome goals. One goal is I want to enjoy my work in life. Thank you, Anjali, for saying that. Want to be satisfied in life with a good career. Great. Want to achieve a good career in life with lot of money, being an accounts manager, earn money. Want to become a successful accountant and open my office and give employment to youths. Awesome, Tejas. Bhagyashri says, I want to be a successful person. Great. I could hear a lot of goals, a lot of sentences which have come out from you on the chat. Thank you, everyone. Thank you for these inputs. These are all the raw material which I need for the discussion. I have Sonia says, I want to be accounts manager, then set up a new business after 2 years. Ajay says to earn a lot of money, to become a good writer. Awesome. Now, I have an important question for you. Is there a difference between I want to be a successful accounts manager? Yes, Bhavika, thank you. Is there a small difference between goals and dreams? Is it? Right? Imagine a genie comes and stands in front of you. एक genie आपके सामने आ जाता है और बोलता है कि चलो मैं आपके dreams successful कर देता हूँ. जो आपने अभी कहा है, I'll make them come true. Right? आपने उसे कहा I want to be successful.
I'm giving you a few examples from which I read over here, and these are a few examples which you could just take it ahead and think about it. एक जिनी आ जाता है आपके सामने, अल्लाह दिन का चिराग तो याद है ना, घिसा तो एक जिनी आ गया, बोले सर आपका हुक्म, आप क्या करना चाहते हैं बताइए, व्हाट इज योर ड्रीम गोल इन लाइफ, एंड यू सेड आई वांट टू बी सक्सेसफुल, और जिनी आपको बना देता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एट द एज ऑफ 70। खुश, हैप्पी, आप सक्सेसफुल हो गए हैं। डोंट से दैट, ऐसा चेहरा मत बनाइए। नहीं, क्यों, क्या गलत है? 70 एज गलत है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनना चाहते थे आप? पर आपने तो सक्सेसफुल कहा था ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सक्सेसफुल नहीं होता है क्या? अच्छा 70 बुरा है। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू नो कि ये जिनी की गलती है कि वो सेंटेंस की गलती है, आपके गोल की गलती है, जो गोल यहाँ पे आपने कहा टू बी सक्सेसफुल। जैसे कुछ लोगों का गोल होता है, आई वांट टू बी द बेस्ट डॉक्टर, आई वांट टू बी द बेस्ट ह्यूमन बीइंग, आई वांट टू बी द बेस्ट सन, आई वांट टू बी द बेस्ट डॉटर, आई वांट टू बी अ बेस्ट फैमिली मेंबर। और जिनी आपको एक कार्ड दिलवा देता है फ्रॉम योर रिलेटिव्स, तथास्तु बोलता है, और आपके रिलेटिव्स आपको कार्ड भेजते हैं, यू आर द बेस्ट सन, यू आर द बेस्ट डॉटर, और यू आर द बेस्ट फ्रेंड, इसके आपको व्हाट्सएप मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। गलत हो रहा है? यू सेड ना यू वांट टू बी द बेस्ट डैश 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 whatever, the best accountant, so आपको कार्ड मिलना शुरू हो जाते हैं, the best accountant. Is that right? Is this what you wanted to be, या कुछ गलत हो रहा है? You said you want to lead a happy and prosperous life. आपने कहा कि आप एक खुशी वाला जीवन बिताना चाहते हैं, हंसी खुशी वाला और prosperous life बनाना चाहते हैं, and you get a job in a TV channel, in a comedy serial as a production assistant. कॉमेडी सीरियल है बॉस, बहुत हंसी खुशी होती है। कपिल शर्मा शो के अंदर आपको प्रोडक्शन असिस्टेंट का जॉब मिल जाता है। एनीथिंग रॉन्ग इन दैट? हंसी खुशी बहुत है, आपने कहा था हैप्पी लाइफ, प्रॉस्पेरस भी है, पैसा मिल रहा है यार, प्रोडक्शन असिस्टेंट है। समथिंग गॉन रॉन्ग? जिनी की गलती है कि ये स्टेटमेंट की गलती है जो आपने गोल स्टेटमेंट कहा? नाउ दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रियली लुक इन लाइफ कि आप अपने बारे में क्या वहां पे कह रहे हैं, कि ये जिनी गलत कह रहा है कि आप गलत हो रहे हैं। काफी ने कहा आई वांट टू गेट अ गुड जॉब, आई वांट टू बिकम एन अकाउंट्स मैनेजर, आई वांट टू बी एन अकाउंट असिस्टेंट। इमेजिन कीजिए यू आर हायर्ड बाय अ कार डीलर टू एंटरटेन कस्टमर्स एट रिसेप्शन। जो रिसेप्शनिस्ट का जॉब होता है वो आपको दे दिया जिनी ने। आपने कहा था ना जॉब चाहिए, क्या गलत हुआ? कुछ गलत हो गया? अ गुड करियर, यू बिकम अ मैनेजर ऑफ अ रेस्टोरेंट और अ बार। वांट टू बिकम रिच, किसी ने कहा था बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ, भैया 2 लाख रुपए की लॉटरी आपकी लगवा दी 2050 में। समथिंग रॉन्ग इन दिस? किसकी गलती है? इज दिस द मिस्टेक ऑफ द जिनी और इज दिस द मिस्टेक ऑफ द कमांड? जो हमने जिनी को कमांड दिया उसकी गलती है? टाइप इन चैट व्हाट डू यू थिंक, हु इज रॉन्ग? इज जिनी रॉन्ग और इज द goal statement, is the dream statement which I wrote has some problem in it and I need to improve on that? What do you think? Wonderful, Kedar, thank you for saying that. You need to be specific. आपने कहा मैं सक्सेसफुल अकाउंट्स मैनेजर बनना चाहता हूँ, बट सक्सेसफुल मतलब क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बीइंग सक्सेसफुल? वो नहीं क्लियर होता है। आई वांट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, अजय कुलकर्णी जी, लॉट ऑफ मनी मतलब कितना मनी? आई वांट टू बी अ गुड राइटर। एक गुडोमीटर लगा के मैं चेक कर सकता हूँ क्या कि भैया मैं गुड राइटर हूँ कि नहीं? दुनिया में ऐसा कोई गुडोमीटर नहीं है, कोई सक्सेसफुलोमीटर नहीं है। I want to be a successful person. What do you mean by successful? उसका कुछ definition है क्या? I want to be a successful accountant. Accountant तक ठीक है, एक certificate, एक degree, एक position की बात है। Successful मतलब क्या? मुझे नहीं पता। I want to give employment to youths. आपने एक खोल लिया सेंटर और वहां पे आपने बहुत सारे ऑफिस बॉयज को काम पे लगा दिया। Is that what you really want to do? Earn money. Wow. सब 150 रुपया तो ऐसे ही मिल जाता है सब आजकल। Is that what you really want to say? तो जो गलती है वो जिनी की है कि गलती मेरे स्टेटमेंट की है? इज समथिंग विच यू हैव टू लुक एट। आई वांट टू बी द बेस्ट अकाउंटेंट आफ्टर 10 years। बाबा बेस्ट मतलब क्या? बेस्ट मतलब सबसे बढ़िया, पर डिफाइन तो करो किसके अंदर? बेस्ट इन द वर्ल्ड, बेस्ट इन इंडिया, बेस्ट एज अ सिटी, बेस्ट इन अ सर्टेन एरिया, इन अकाउंटिंग और इन फिनेंस और इन डायरेक्ट टैक्स और इन इनडायरेक्ट टैक्स, किस चीज के अंदर? आई वांट टू बी एक्सपर्ट इन फिनेंस। एक्सपर्ट का क्या डेफिनेशन है? डू यू हैव अ ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, डिस्टिंक्शन, 78%, 90%? दैट इज बीइंग स्पेसिफिक। खुद का टैक्स ऑफिस, यस, बंदूक निकालिए, लेके जाइए, बोलना आज से तेरा टैक्स ऑफिस मेरा। इज दिस द वे यू वांट टू अचीव खुद का टैक्स ऑफिस?
This is all what you really want to see in life, कि आपके जो sentences हैं वो कैसे हैं, right? And that is something which you have really rightly typed, that we have to be specific and measurable in our goal statement. और ये बहुत जरूरी है कि आप specific और measurable हो सकते हैं क्या, और अगर आप specific और measurable अगर हो सकते हैं तो आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं। और उसके लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आप आपका स्पेसिफिकनेस चेक करें आपके गोल स्टेटमेंट्स के अंदर। और गोल स्टेटमेंट्स के अंदर स्पेसिफिकनेस चेक करने का एक ही तरीका है कि आपके गोल्स को आप स्मार्ट बनाएं। सो लेट्स सी हाउ टू मेक गोल्स स्मार्ट। लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड वेयर वी विल लुक एट कि ये जिनी की गलती तो नहीं है, बट मेरे जो ड्रीम्स हैं, मेरे जो गोल्स हैं, इसको मैं स्पेसिफिक कैसे बना सकता हूँ, इसको मैं बेहतर कैसे बना सकता हूँ, राइट? सो इफ यू आर रेडी टू मेक दिस गोल्स more specific, more better, let me take you to the next slide where we're going to talk about SMART goals. So if you are ready to know more about being SMART goals, type in the chat SMART, S-M-A-R-T जरा type कर दीजिए so that we can look at being smarter in our day-to-day life. Chat में आप एक बार SMART type कर दीजिए so that I could take you to become SMART goals. Okay, thank you. So let's look what is SMART goals for a moment, right? जिस तरह से आपने बिल्कुल कहा कि जिनी को मुझे स्मार्टली बताना है, स्पेसिफिकली बताना है, बिल्कुल उसी तरह हम इन गोल्स को एक बार करके ओपन करते हैं कि स्मार्ट का डेफिनेशन करते हैं। और एक बार बिफोर वी गेट इनटू स्मार्ट, लेट मी जस्ट टेल यू, यू ऑल हैव अ जिनी इन योर लाइफ। आप सबके जीवन में एक जिनी है, और वो जिनी कौन है? द जिनी इज योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके लाइफ के अंदर वो चीज जो आपके अंदर है, द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ योर needs a very specific goal, a specific command. If you give it to it, it would be very useful for you. It would help you a lot. और ये साइंस ने प्रूव किया, ये मेरी बात है, ऐसे मत मानिएगा, right? So let's look at making some smart goals, right? So what is S? S stands for being very specific and clear. What exactly you would like to have? Let's talk about M. M is something similar which is measurable. कि उसको आप मेजर कैसे करोगे, कि आपने वो अचीव कर लिया तो आपकी लाइफ में वो आ गया, या आप कैसे अचीव कहोगे कि अचीव हुआ? दैट इज स्पेसिफिक एंड मेजरेबल. These are two important things which you have to remember. And third important thing is you have to really look at whether it is a time bound goal or not. यानी आप जो करना चाहते हो उसके लिए आपने कोई समय निर्धारित किया है कि नहीं. Many of you put it in the chat, I want to become an accountant in the next 3 years. I want to become rich in 5 years, and that is important. तो आपका टाइम बाउंड था, 2 साल बाद मैं अपनी एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, तो टाइम बाउंड है. बट अगेन ये 2 साल बाद थोड़ा सा यार डाइसी है, क्योंकि आप अगले साल भी बोल सकते हो 2 साल बाद, और उसके अगले साल भी बोल सकते हो 2 साल बाद, एंड द 2 years would never come, right? ऐसा भी हो सकता है. So instead of that, start defining this is 2020. So in 2022, और 2022 जनवरी से लेकर के दिसंबर तक है. Define the month. So you say December 2022, I will have my own business. अब दिसंबर भी 1 to 31 होता है. So define by 1st or by 31st of December 2022, I would have a business. Now define the business. कि आपका जो बिजनेस है, or I would have a job. Define the job, which is specific and measurable. Now, what do you mean by specific and measurable? इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं. I say I want to have a job. So job के क्या क्या definitions होते हैं? Talk about being specific as you could in your chat. अगर आपको एक जॉब करना है तो उसके लिए आपको डिफाइन करना है आपका बहुत स्पेसिफिक जॉब. तो क्या क्या पैरामीटर्स डिफाइन करोगे? जॉब रोल, राइट? जल्दी से लिखिए, जॉब रोल, राइट? और कुछ जॉब रोल के अलावा और क्या आप अपने सैलरी के बारे में डिस्कस करना चाहोगे जो बिल्कुल स्पेसिफिक होगा? जल्दी से, लेट मी लुक एट इट इन चैट. What do you think are those specific things which you would like to discuss about your job? जॉब रोल यानी उस जॉब में आप करोगे क्या, राइट? उसके अलावा और कुछ अगर आप जॉब रिलेटेड
बात करना चाहोगे, पूछना चाहोगे, बताना चाहोगे जिनी को जल्दी से। सैलरी बताना चाहोगे, यस टाइप कीजिए फिर चैट के अंदर सैलरी। व्हाट एल्स, एनीथिंग एल्स? सो जॉब रोल, सैलरी, डेजिग्नेशन, यस वंडरफुल। डेजिग्नेशन क्या होना चाहिए? ओहदा भी इंपॉर्टेंट होता है यार, स्टेटस वाली बात है। व्हाट एल्स? रिपोर्टिंग टू होम, किसको रिपोर्ट करूंगा, या कोई मेरे को रिपोर्ट करेगा क्या? हु विल रिपोर्ट टू मी, वो भी आपका डिफाइन होना चाहिए। एनी कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज देयर, कि जबरदस्ती में को इतने महीने तो काम करना ही पड़ेगा। वाओ, सोनिया टाइप्स 3-4 पैरामीटर्स एट द सेम टाइम। जॉब रोल, सैलरी पैरामीटर्स, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, और कुछ जल्दी से 4-5 चीजें, और कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। ये गोल की बात हम कर रहे हैं तेजस। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द गोल फर्स्ट। स्किल्स आर द वे टू रीच द गोल। और कुछ जॉब रिलेटेड आप डिफाइन करना चाहोगे? वुड यू लाइक टू डिफाइन द सिटी, या कोई भी सिटी में चलेगा? आपको मैं टिम्बकटू भेज दूं, वहां पे जाके आप काम करने को तैयार हैं? नहीं, चॉइस ऑफ सिटी भी होना चाहिए कि कौन से सिटी के अंदर आप काम करना चाहेंगे। वंडरफुल। तो जॉब रोल, सैलरी, डेजिग्नेशन, मे बी सिटी, राइट, पोजीशन, यस। सो आपने ये 4-5 चीजें अगर आपने आपके जॉब के बारे में डिफाइन की, नाउ दिस इज स्पेसिफिक, दिस इज मेजरेबल। एम आई मेकिंग सेंस? राइट। सो आप अपना, अगर आप जॉब के बारे में बोलना चाहते हैं कि मैं करना चाहता हूं कोई जॉब, तो आप जॉब का क्या जॉब रोल होना चाहिए, किस प्रकार का काम आप करना चाहते हैं, किस प्रकार का आपका डेजिग्नेशन होना चाहिए, किस प्रकार का सैलरी होना चाहिए, किस प्रकार की कंपनीज होनी चाहिए। वाह, थैंक यू भाविका फॉर सेइंग दैट। चॉइस ऑफ कंपनीज, 2-4-5 कंपनीज का नाम भी हो सकता है ना आपके दिमाग में कि यार ये 5-10 कंपनियों का नाम है, या मल्टीनेशनल कंपनी होनी चाहिए, या प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए, या इतनी छोटी इतनी बड़ी होनी चाहिए, राइट। एंड प्लेस कौन से सिटी में होना चाहिए। तो जब आप ये 4-5 चीजें डिफाइन कर देते हैं, दैट मेक्स इट स्पेसिफिक एंड मेजरेबल। सिर्फ ख्याल इतना रखिएगा कि इसको बहुत नैरो मत कर दीजिएगा और बहुत वाइड मत कर दीजिएगा, दोनों चीजें बुरी है। व्हाट डू यू मीन बाय नैरो? नैरो का मतलब ये होता है कि मैं कहूँ कि मुझे ना आईबीएम में नौकरी करनी है, मुझे ना अकाउंट एग्जीक्यूटिव यही पोस्ट चाहिए, आईबीएम अकाउंट एग्जीक्यूटिव, मुझे ना 22,000 रुपए सैलरी चाहिए, मुझे ना हिंजेवाड़ी में जॉब चाहिए, और मुझे ना जॉब चाहिए है ओनली इन द डे शिफ्ट फ्रॉम 10 to 6। और क्या बचा? और मेरा जो रिपोर्टिंग बॉस है ना, वो कोई मैडम होनी चाहिए। क्या? 6 बिल्कुल स्पेसिफिक दिया है। अब सबकॉन्शियस माइंड, तेरा काम है कुछ भी कर, मेरे को ये अचीव करके दे। अचीव हो जाएगा, नहीं होगा ऐसा नहीं, थोड़ा मुश्किल है जिनी के लिए भी, बट क्या आप वाकई में वेट करना चाहते हैं बहुत साल, जब तक कि सही जॉब नहीं मिले तब तक नहीं करना चाहेंगे? तो थोड़ा सा इसको ब्रॉड कीजिए। अब कुछ लोगों को थोड़ा सा ब्रॉड करने को बोला था, यार कोई भी प्रकार का जॉब मिल जाए, बस एक 25,000 सैलरी मिल जाए काफी है, बाकी सब एक्स एक्स एक्स, एनीथिंग विल डू, ओनली सैलरी इज इम्पोर्टेंट, 25 मिलनी चाहिए। नाउ दैट इज ऑल्सो वेरी ब्रॉड। आपने सिर्फ एक ही पैरामीटर सेट किया, आप मल्टीपल पैरामीटर सेट कर सकते हैं ना। You can talk about a salary range from say 15,000 to 25,000, 30,000, or 15,000 and above, or 20,000 and above. आप एक salary range set कर सकते हैं। Now that is a range and it is wonderful, right? But it is specific as well. You say a range of this, so आपका जो job application है उस range के अंदर जाता है। Then you say cities, cities like, give me cities, Pune, what else? Mumbai, what else? All capital cities of states, नहीं? आसपास की कुछ सिटीज के नाम। वंडरफुल। सो यू डिफाइन फ्यू सिटीज, एटलीस्ट 5 सिटीज ऑफ योर चॉइस। तो आप ऐसे 4-5 सिटीज अगर अपने चॉइस के डिफाइन कर दें, 10 सिटीज डिफाइन कर दें, और एनीवेयर इन महाराष्ट्र कर दें, इफ यू आर इन महाराष्ट्र, सो समथिंग लाइक दिस इज स्पेसिफिक, बट इट आल्सो हैज अ विड्थ, राइट। सो दैट्स द सेकंड पार्ट। कंपनी के बारे में डिफाइन कीजिए। सो कंपनी विच हैज मिनिमम 50 एम्प्लॉइज, विच इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, परफेक्टली ओके। मिनिमम, मैक्सिमम तो भैया मल्टीनेशनल भी चलेगी, आईबीएम, गूगल, और क्या है, एक दो और नाम ले लीजिए मल्टीनेशनल के, वो भी चलेंगे, राइट। सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू डिफाइन स्पेसिफिकली, नॉट वेरी नैरो, नॉट वेरी ब्रॉड। जब आप उसको बहुत नैरो कर देते हैं, तो केदार ने बिल्कुल सही कहा चैट में, यू हैव लिमिटेड चॉइसेस, आपको नहीं पता चलता है कि आप क्या कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ब्रॉड डिफाइन कर देते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता मैं कहाँ पहुंचे। सो ये दोनों चीजें एस और एम के लिए इंपॉर्टेंट है। और तीसरी है टाइम बाउंड। यू हैव टू डिफाइन अ सर्टेन टाइम फॉर इट, कि कितने समय में आप ये
स्पेसिफिक और मेजरेबल के हिसाब से वहां पे पहुंचना चाहते हैं। ये हो गए 3 इंपॉर्टेंट थिंग, एस, एम और टी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर सेटिंग अ गोल। हमने पहले 45 मिनट सिर्फ इस तक पहुंचने में खर्च किए हैं। अब 2 इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, एंड दीज आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, विच इज ए, विच इज whether it is achievable or not, is it realistic or not, and R, which is relevant to you, or whether it could be recorded or not. So what do you mean by achievable, whether it is realistic or not? मैं ये achievable या realistic चीज क्यों ला रहा हूँ? एक छोटी सी एग्जांपल से आपको ये मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि यू आर समवेयर, राइट? आप आपकी लाइफ में कहीं तो भी हैं, आपका प्रेजेंट कुछ तो है, you have certain qualification, you have certain knowledge, you have certain skills, आपकी कुछ आदतें हैं, आपके कुछ पसंद नापसंद हैं, आपके कुछ प्रेफरेंसेस और चॉइसेस हैं, आपका खुद का एक स्वॉट आपने किया होगा। आईसीए में पढ़ रहे हैं तो आपने खुद का अपना एक स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को एनालाइज किया होगा कि व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर माय वीकनेसेस, मेरे लाइफ में अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी हैं और मेरे जीवन में थ्रेट्स क्या क्या हैं, व्हाट फैमिली सपोर्ट आई हैव, what responsibility I have to take in my family or otherwise. तो ये आपका प्रेजेंट है। यहाँ से आप एक जंप लगाना चाहते हैं, यहाँ से आप पहुंचना चाहते हैं आपके फ्यूचर में, जहाँ पे आप एक जॉब करना चाहते हैं, उस जॉब की क्या कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड है, उसमें क्या एक्सपोजर और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, उस जगह पे पहुंचने के लिए मुझे रिलोकेट होना पड़ेगा क्या, ट्रैवल करना पड़ेगा क्या, मुझे कुछ नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी क्या, मुझे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेगी, मुझे किस चीजों की जिम्मेदारियां, जवाबदारियां लेनी पड़ेंगी, एंड व्हाट ओनरशिप विल आई हैव टू टेक। दिस इज द फ्यूचर वेयर यू वांट टू रीच। एंड इस फ्रॉम से इस टू तक पहुंचने के लिए, यानी अगर मैं पूना हूं तो पूना से मुंबई जाने के लिए मेरे पास में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यानी हाउ डू आई रीच फ्रॉम हियर टू देयर is the path which defines whether it is achievable or not. फिर से एक बार थोड़ा सा एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं। आप में से काफी सारे लोगों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की इच्छा रखी होगी लाइफ में, सीए बनने की। जरा चैट में टाइप कीजिए कितने लोग सीए बनने की इच्छा रखे थे, किसी ने गोल रखा था लाइफ में, आई वांटेड टू बी अ सीए। तो सीए कितने लोग बनना चाहते थे, जरा टाइप कीजिए सीए चैट के अंदर। लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू had a dream or even today have a dream of becoming a CA. So that's something which you want to achieve in life. टाइप कीजिए फटाफट चैट में, लेट्स सी। यस, सीए टाइप कीजिए आपके चैट में, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी अ सीए और वांटेड टू बी अ सीए, दोनों में से एक। सो पूजा, साइली, प्रांतिक, प्रतीक, सॉरी, गैलेक्सी J6, Kedar, many of you would like to be a CA, right? You had a dream of being a CA or you have currently a dream of being a CA. Now let's check whether it is realistic or not. There are 2 important things to check for any goal in life, to whether it is realistic, whether it is achievable or not. एक, उसके अंदर कितना कंपटीशन है, उस फील्ड में वो जो चीज आप बनना चाहते हो, what is the competition in that field? That's the first thing which you have to check. And the second important thing which you have to check is what is your capability and your consistency for that goal. आपके पास में उस गोल को अचीव करने के लिए क्या कैपेबिलिटी अंदर है और क्या कंसिस्टेंसी से आप उस पर काम कर सकते हो। ये 2 चीजें आपको हमेशा चेक करना जरूरी है। वन इज कंपटीशन, दूसरा है कैपेबिलिटी और कंसिस्टेंसी। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको आपकी जो कैपेबिलिटी है, न्यूमेरिकल कैपेबिलिटी यानी कैलकुलेशन करने की कैपेबिलिटी और वर्बल एनालिसिस की कैपेबिलिटी काफी हाई चाहिए होती है। ये बेसिक आईक्यू है, वर्बल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। इफ यू हैव दैट हाई, दैट यू कैन सी अ प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट फटाफट विदाउट टेकिंग मच एफर्ट, देन यू हैव द कैपेबिलिटी। और दूसरी चीज चाहिए होती है साहब, कैपेबिलिटी के साथ में कंसिस्टेंसी टू डू दैट वर्क। क्या आपकी ये कैपेबिलिटी को आप 8 से 10 घंटा रोज यूज कर सकते हैं? इफ यू कैन विदाउट थकने के बगैर, विदाउट गेटिंग फीलिंग बैड अबाउट इट, इफ यू कैन डू दैट, आप उसके कारण थक नहीं गए, आप बिना एंटरटेनमेंट के, बिना ब्रेक्स के या थोड़े बहुत ब्रेक्स के साथ में आप कंटिन्यूस कर पाए 8 से 10 घंटा एंड विद सुपर कैपेबिलिटी ऑफ से 7 out of 10 or 8 out of 10 and working for 7 to 8 hours, then you are in the race. Otherwise, you are not in the race. Understand this? फिर से एक बार ध्यान से सुनिए। पूजा कहती है डेडिकेशन टू अचीव योर गोल।
मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ पूजा, अगर पूजा में इस उम्र में मेरे में डेडिकेशन है कि मुझे ना मैराथन का ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतना है, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? पूरा डेडिकेशन है, मेरा मेरा गोल है ओलंपिक में मैराथन का मुझे गोल्ड मेडल जीतना है। आई कैन रन अ मैराथन, that is possible, that we have seen people run at the age of 70 as well, run a marathon. But to win a marathon, there are people who would be there in your competition, who would be 18, 16, 20 years of age, who have practiced for 10 years, who are 6.5 feet tall, who have a stamina which is great, and who practice for 10 hours a day. I stand no chance. Dedication alone does not help. Dedication is one element. Dedication important है, but dedication is not the only thing which can take you there. और ये चीज आपको ख्याल रखना जरूरी है स्मार्ट गोल सेट करते समय, क्योंकि हम कई बार बहुत स्मार्ट गोल सेट करते हैं। मुझे 1 करोड़ रुपया महीना कमाना है या 1 करोड़ रुपया साल कमाना है, चलिए महीना छोड़ देते हैं। सो आप अभी क्या कमा रहे हैं साहब? अभी आपके पास क्या रिसोर्सेज है साहब? अभी आप कहाँ पे हैं साहब? तो अभी तो सर मम्मी पापा से पैसे पॉकेट मनी के लिए झगड़ना पड़ता है। ओके, कब तक करना चाहते हैं? अगले साल से। सो दिस इज समथिंग विच वी हैव टू बी रियली रियली अवेयर ऑफ, कि आपकी कैपेबिलिटी और कंसिस्टेंसी टूवर्ड्स एफर्ट्स टूवर्ड्स रिक्वायर्ड टूवर्ड्स दैट गोल, जिसके अंदर कंपटीशन कितनी है उसके हिसाब से। अगर एक सीए के लिए हर साल कितने लाख लोग अप्लाई करते हैं? हाउ मेनी पीपल गिव एग्जाम्स फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एवरी ईयर? टाइप कीजिए साहब जरा चैट में, लेट मी सी योर जनरल नॉलेज अबाउट इट, कि हाउ मेनी लाख पीपल अप्लाई फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एवरी ईयर। नाउ दैट इज द कंपटीशन, इन दैट you have to be in the top 3 to 5% or 10% to achieve your score to become a chartered accountant. CA का बिल्कुल clear percentage है, 3 to 5, sometimes till 8% goes that the people who apply, who get in there, वो उस लेवल पे जाके आपको कुछ काम करने, कि आप उस लेवल पे पहुंचे तो आपको काम करना मिलता है। Anybody would like to talk about the number of people who joined in chartered accountant? Anybody has a number? Let me see if you know about a number. Vinod sir, can you talk about a number about the applications which you have for chartered accountant? It is very similar to MBA. When you give an exam, it is very similar to IITs and IIMs. Wherever there is a competitive exam, how many people apply is the question mark which we have to ask. So that is your competition, that is your numbers, bank PO, that is your numbers, and then what is your capability and your consistency. That defines your achievable or non-achievable goal. मेरा ये इस पे फोकस आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है, टू मेक द थिंग्स रियलिस्टिक। करना तो हम सब कुछ चाहते हैं, राइट? बट हमारा गोल उतना रियलिस्टिक है क्या? हमारे पास उतना कॉम्पिटेंसी एज कंपेयर टू अदर्स? That's the basic reason I'm asking you a figure, right? 6,000 people apply. कुछ गलत फिगर है सोनिया, थोड़ा चेक कीजिए। केदार says approximate 40,000 people apply. So right, so around 2 lakh people apply every year. That's an official number. Google पे जाके चेक कीजिएगा। So अगर एक 2 लाख लोग अप्लाई करते हैं, उसका टॉप 4%, 2 लाख का 4% कितना होता है, और उस 4% के अंदर मैं आ सकता हूँ क्या, is something which we have to really look for, right? And that is something which we have to figure out, कि वो 4 से 8% के अंदर is something where I can figure out and I can work that hard. अगर आप उस 15-20% में है, then your work smart and work hard can take you up and reach there. And this is something which I want you to set as a smart goal for yourself. Let me take this discussion further, कि आपने एक स्मार्ट गोल, अगर आपने आपका जो पहला गोल था उसको अगर स्मार्ट में कन्वर्ट करना है, तो आपको उसको लिखना पड़ेगा, आपको उसको टाइप करना पड़ेगा, एंड यू वुड हैव टू मेक इट स्मार्टर. सो नाउ वुड यू लाइक टू मेक इवैल्यूएट योर गोल्स कि ये कितने स्मार्ट है? Let me give you a few examples of what is a smarter goal than just a statement, right? So I want to do a good job, या I want to be very successful. इसको अगर हमें स्मार्ट भाषा में लिखना है तो कैसे लिखना है? This is something which is a smart way of writing.
I want to become the head of the design department, yeah, the head of the accounts department or something like this of a limited company or a private limited company. तो मैं define कर रहा हूँ with a salary of around so much, around 10 lakh rupees and above in 4 years from today. Now 4 years from today को define कर दो, date बोल दो तो ज़्यादा बेहतर होगा. Now this is something which is a far smarter goal than the sentence on the left hand side. Make sense? Pakka? So this is one example. Let me give you a few more examples about your goals. I want to be an engineer. Very unspecific. कब तक पता नहीं. I want to clear all subjects of chartered accountant by the year so and so. That makes it very specific. I want to become rich. Not a specific goal. I want to buy a new car by 2022 and a 3 BHK flat in XYZ or ABC area by 2030. Very specific. अभी ये expense का goal है, ये investment का goal नहीं है. You could also talk about assets. I would like to have an asset of so and so lakh of rupees. जरूरी नहीं है कि कार खरीदो और फ्लैट खरीदो. क्या ये expense वाला goal है rich का. But ये you could have an asset goal as well. You could have a net worth goal as well. You could define your net worth over here कि मेरा इतना net worth होना चाहिए by so. I want to make my family happy. कैसे? How would you know that your family is happy or not? Define something which is realistic. I'll spend around 4 hours per week with my parents or my spouse and one picnic per month. Now this could be for a working professional goal. As a student, you could have a different goal as well about making your family happy. I want to improve English. ये लैंग्वेज इंप्रूवमेंट या स्किल इंप्रूवमेंट बहुतों का गोल होता है, बट सिर्फ इतना बोल देने से गोल नहीं बनता है. यू हैव टू बी मोर specific about it. I will complete my so and so book in 3 months, or I'll achieve a O-level certification by so and so year. So this is something very specific which you have to define in your day-to-day life. The goal, the left-hand side is your dreams or wishes, which I may say, and the right-hand side is a smart goal which you have to do. So what I want you to do is, I want you to take 5 minutes of time and actually go and write down these specific goals and talk about it to a friend. So I have close to 30-40 people in this room. What I'm going to do is actually set you into smaller rooms, in breakout rooms, where you would be 5 to 6 people in a room. And what I want you to do is talk about your smart goal to other people in the room. You're all students from the same institute. You can make them friends, introduce yourself, and talk about your smart goal. And give a feedback to each other. Take a feedback. अगर कोई बोलता है ये smart नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सा बेहतर करो. So do that in that breakout room. Are you ready to go into a breakout room? And also help your friend find an accountability partner. अगर आप उनके साथ में connect होना चाहते हैं और थोड़े दिन और बिताना चाहते हैं कि भैया तेरे गोल अचीव करने में मैं हेल्प करना चाहता हूँ, तो even you can do that, right? So should I divide you into groups, and would you like to talk to your friends right away? Shall I do it? Are you ready to go into breakout rooms where you could discuss with your friends and then come back to me in around 10 minutes of time? जहाँ पे आप 5 से 6 लोग होंगे, एक दूसरे को आपको अपना गोल बोलना है, स्मार्ट गोल बोलना है और उनसे फीडबैक लेना है. Are you ready for this? If you are ready to go and discuss, type in the chat ready, and I'll divide you into breakout rooms. I'll send 5 to 6 people. I'll divide you into 4 breakout rooms. Go there, discuss, and then come back and tell me what you liked, what your questions are, and then we will take on the next part of our discussion. आपके डिस्कशन का बाकी का एजेंडा हम उसके बाद आगे ले जाएंगे. So 10 minutes of time for discussion in breakout. It's like a tabletop discussion. जैसे आप छोटा क्लासरूम के अंदर छोटे ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, बिल्कुल वैसा होगा. Are you ready for it? If you are ready for it, type breakout in the chat. Breakout यानी break नहीं है चाय पाई पीने का. This is a breakout room for discussion. Are you ready for discussion, guys? Okay. So I see a few chats. आपको सिर्फ आपका माइक ऑन करना है और बात करना है. वीडियो ऑन करना चाहें तो आपकी मर्जी है. Ready? Thank you Akash. Thank you everyone. So what I'll do is I'll open the breakout room for you. आपको join क्लिक करना है और जैसे ही आप join क्लिक करोगे, you will be going to a smaller room जहाँ पे 30 लोग नहीं होंगे, 5-6 लोग होंगे. अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए, अपना
अपना अपना गोल बताइए, स्मार्ट गोल बताइए, उनका सुनिए, give them feedback, take feedback, correct your goals, and if you want to be a part of their goal, tell them that I want to become your accountability partner. Can I help you achieve your goal with you? Make sense? So मैं आपके ओपन कर रहा हूँ, आपको ज्वाइन इस बटन पे क्लिक करना है. Once you see the join button on the screen पे join पे क्लिक कीजिए and you would be able to join breakout rooms. Okay, welcome back everyone. So breakout room number 1. Ajay, Aniket, Bhavik, Pooja, Sonali, Vikas. What discussion did you have there? Anyone would like to talk? Would like to share? कुछ discussion वहाँ पे हुआ, किया कुछ? सर मैं एक्सक्यूज मी सर, मेरा नाम प्रकाश है सर. जी प्रकाश बोलिए. सर हमने कहा था, मैंने तो 15 साल मैंने डिजाइन किया है. ये फील्ड मेरे लिए नया है. बीए बेसिक अकाउंटिंग और टीडीएस का कोर्स कर रहा हूँ अभी. बस मुझे अभी डायरेक्टली मेरा एम है कि पैसा कमाऊं. बढ़िया. सर लॉटरी टिकट ट्राई करोगे? सर इसीलिए मैं ऐसे ज्वाइन हुआ हूँ कि कुछ मेरे हाथ में काम हो, वो काम के जरिए से मैं पैसा कमाऊं. वरना बहुत बढ़िया. सही लाइन आपने उसके बाद जो बोली है वो सही है. कुछ ऐसा काम करूं जिससे कि मैं पैसा कमाऊं. बढ़िया. सो अर्निंग मनी और मेकिंग मनी में ये फर्क है. प्रकाश, थैंक यू फॉर सेइंग दैट. सो अगर आप आईसीए में क्या पढ़ रहे हो? अभी बेसिक अकाउंटिंग कर रहा हूँ सर. बढ़िया. तो बेसिक अकाउंटिंग करके आप में क्या स्किल्स डेवलप हो जाएंगे? मुझे अकाउंटिंग के बारे में समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट मैं टीडीएस करूंगा सर, टैक्सेशन. बढ़िया. तो आपको टीडीएस के स्किल्स भी आ जाएंगे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स वगैरह कैलकुलेट करना आ जाएगा. राइट. अब आप ये काम किसके लिए कर पाएंगे, किस व्यक्ति के लिए कर पाएंगे, कौन से लोगों को इसकी आवश्यकता है? सर इनकम टैक्स फाइल अप करते हैं ना सर. बढ़िया. वो फाइल बढ़िया. इनकम टैक्स रिटर्न्स भरने में आप लोगों को मदद कर पाएंगे. राइट. सो इनकम टैक्स रिटर्न्स भरने में जब आप लोगों को मदद कर पाएंगे तो उसमें से आपको आपका क्या मिलेगा? यू विल गेट योर सैलरी और यू विल गेट योर कमीशन और यू गेट योर सर्विस चार्जेस एंड दैट इज हाउ यू वुड बी एबल टू अर्न मनी आउट ऑफ दैट. राइट प्रकाश? सो अब आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप व्हिच यू हैव टू डू? वो अपन 2 मिनट बाद सेमिनार में पहुंचेंगे वापस अपने स्लाइड्स पे, तो वी विल कम टू नो कि व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट एंड हाउ वी हैव टू अचीव इट. बट योर गोल इज वेरी क्लियर प्रकाश नाउ दैट यू वांट टू सर्व कितने 100 पीपल पकड़ लूं या 50 पीपल पकड़ लूं टू फिल इनकम टैक्स रिटर्न? 100 लोगों का इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहोगे फर्स्ट ईयर में? हाँ सर. 50 जैसा मैं कर सकता हूँ काम. मैं जैसा काम मैंने तो अब तक किया नहीं है, जैसा मैं करूंगा उसके हिसाब से सोचूंगा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अब आपने किया नहीं पर ऐसे कुछ लोग होंगे जिन्होंने पहले किया है प्रकाश. हाँ. राइट. सो यू हैव टू मीट देम एंड आस्क देम कि सर वो कितने आप भर लेते हो इनकम टैक्स रिटर्न एक साल भर में, कितने कर लेते हो, कौन से महीनों में होता है ये काम बहुत ज्यादा, और उस समय आप कितना चार्ज करते हो और कितना वक्त लगता है. Now, if you do a small internship or if you talk to your chartered accountant faculty or to those people who do this work, you can very clearly ask them कि वो कितना काम करते हैं, क्या कमाते हैं, कैसा करते हैं, and they will guide you and then you can set your goal. तब आपका जो स्पेसिफिक और मेजरेबल गोल होगा वो रियलिस्टिक होगा, वो अचीवेबल होगा, क्योंकि आपने क्या किया, जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में हैं उनसे आपने एक्सपीरियंस लिया और सीखा. राइट. So practically goal set हुआ. Thank you for asking that, Prakash. So this is an example for all the students here in the room कि आपने अगर आपका गोल सेट करना है स्पेसिफिक और मेजरेबल और अगर वो रियलिस्टिक है तो प्लीज जिनी का वेट मत कीजिए. You have to take action. You have to meet people who have already been in this field. Your faculties, meet them, talk to them about the job which you want to do. और वहां पे किस प्रकार का जॉब होता है, क्या करना होता है, किस प्रकार की कंपनीज होती हैं, कौन कौन सी कंपनीज के नाम हैं वो मालूम कीजिए एंड देन स्टार्ट राइटिंग योर गोल इन अ स्पेसिफिक एंड मेजरेबल वे. आप लोगों ने सुन तो लिया है स्मार्ट गोल क्या है, पर अगर आप इसको लिखोगे नहीं तो फायदा नहीं होगा. ठीक है सर. सो 1:15 बाय द क्लॉक, 1:30 बजे तक इसको खत्म करने का मैंने वादा किया था कि विल बी एबल टू कंप्लीट. लग रहा है थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा बट लेट्स सी इफ आई कैन अचीव इट विद इन द गिवन टाइम. सो हम स्मार्ट गोल्स तक तो पहुंचे, ब्रेकआउट रूम्स किया, अब आते हैं थोड़ा सा अलाइनमेंट ऑफ गोल्स की तरफ. सो
मैं एक ब्रेकआउट रूम में डिस्कशन में गया था, सुन रहा था, तो मुझे एक ब्रेकआउट रूम के अंदर एक मित्र ने कहा कि सर अकाउंटेंट बनना है, अकाउंट्स मैनेजर बनना है, लेकिन अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि उसके आगे क्या करना है. सो व्हाट इज दैट? दैट इज समथिंग व्हिच ही इज टॉकिंग अबाउट इज लॉन्ग टर्म गोल, कि आज से 4 साल बाद 6 साल बाद मेरे को अकाउंट्स मैनेजर बनना है, पर वहां का ज्यादा आइडिया नहीं है कि अकाउंट्स मैनेजर करता क्या है, या कौन सी कंपनी होगी, या क्या रोल होगा, या कितना स्पेसिफिक सैलरी होगा, ये नहीं पता है मुझे. So I do not know what a long term goal is, right? But ये लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड करना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं लॉन्ग टर्म गोल्स के बेस पे आप मीडियम टर्म गोल डिफाइन करोगे, उसके बेस पे आप शॉर्ट टर्म गोल डिफाइन करोगे. काफी लोग रिवर्स भी करते हैं. एक स्टेप करते हैं ना, अभी थोड़ा सा एक स्टेप करते हैं, उसके बाद अगला स्टेप देखेंगे, पर उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है. कई बार आपका जो है ना, एक स्टेप करते करते किसी और दिशा में निकल जाते हैं, और बाद में पता ही नहीं चलता है कि यार हम बहुत दूर आ चुके हैं. And that is something which you have to be careful about. So you have to find people in your field who have 10-15 years of experience, connect with them, talk to them, see where they are, and then you have to decide a goal accordingly, your long term goal. Does that make sense? ठीक बात लगी? तो आपको करना क्या है, आपको आपके प्लेसमेंट ऑफिसर से बात करनी है, या आपको लिंक्डइन पे जाना है, फेसबुक पे जाना है, और आपके फील्ड के अंदर 8 से 10 साल एक्सपीरियंस वाले जो लोग हैं उनको ढूंढना है, 8 साल 6 साल, और वो कौन से पोजीशन पे हैं, कौन सी कंपनी में, ऐसे 10-15 लोगों के नाम ढूंढने हैं. पॉसिबल है ढूंढना? Yes, no? You can find these people, and then you could see what they are doing today, and you could do something out of it. Let me try and give you a small brief, if possible, of these people. मैं आपके लिए अगर 2 मिनट में कर सका तो let me try and pull out. आप में से कितने लोगों के पास LinkedIn अकाउंट है? How many of you have a LinkedIn account? How many of you have a Facebook account? आपका लिंक्डइन अकाउंट वगैरह है क्या, फेसबुक अकाउंट है? जरा चैट में टाइप कीजिए यस, so that we can see how many of you have a LinkedIn or a Facebook account. Yeah, so what I'm going to do is, yes, thank you for that. I'm going to try and share with you my LinkedIn account. यहाँ पे देखिए मेरा ये LinkedIn अकाउंट है, आपका भी LinkedIn अकाउंट होगा ऐसा. so ये आप LinkedIn पे गए, काफियों ने यस कहा है चैट के अंदर, थैंक यू. सो अगर आपका फेसबुक या लिंक्डइन दोनों में से जो भी अकाउंट है, वहाँ पे सर्च करके ऑप्शन होता है, सर्च पे क्लिक कीजिए, और सर्च पे क्लिक कीजिए अकाउंट्स मैनेजर. थोड़ा सा माइक ऑफ कर दोगे विनोद सर, किसी का ऑन हो गया है. सो आप टाइप करोगे अकाउंट्स मैनेजर, और अकाउंट्स मैनेजर टाइप करके आप क्लिक कीजिए यहाँ पे, तो वो सर्च करना शुरू कर देता है अकाउंट्स मैनेजर. देखिए साहब, अकाउंट्स मैनेजर 9,54,000 नहीं, 9 करोड़ 54 लाख 95 लाख, सॉरी, हाँ 95 लाख अकाउंटेंट मुझे लिंक्डइन पे दिखाई दे रहे हैं, राइट. अब इसको थोड़ा सा मैं और फिल्टर कर सकता हूँ कि मैं इसके अंदर पीपल ढूंढना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ पीपल बोल देता हूँ, तो पीपल थोड़े कम हो जाएंगे. उसके बाद में मैं देखना चाहता हूँ कौन सी कंपनीज में है, तो देखिए यहाँ पे कंपनीज के नाम भी आ जाते हैं कि कौन कौन सी कंपनी के अंदर है, वो देखना चाहता हूँ. यहाँ पे लोकेशन भी आ जाता है, कौन से लोकेशन में देखना, मैं सिर्फ इंडिया के देखना चाहता हूँ, मैंने सिर्फ इंडिया ऑन किया, तो ये मुझे इंडिया के दिखाया उसने. 5,96,000 अकाउंट्स मैनेजर. अब इसके अंदर से मेरे कनेक्शंस में कितने हैं, फर्स्ट कनेक्शंस में कितने मैं देखना चाहता हूँ. मैंने फर्स्ट कनेक्शंस बोला, तो मेरे फर्स्ट कनेक्शंस में 315 लोग निकले मुझे. फर्स्ट कनेक्शन यानी जो मेरे से डायरेक्ट कनेक्टेड है. सो आई हैव 315 accountants in my first connection who are working somewhere. I can go to them, I can send them message, and I can talk to them. आपके जरूरी नहीं फर्स्ट कनेक्शन में हो, आप सेकंड कनेक्शन भी देख सकते हैं. आप फर्स्ट और सेकंड देख लीजिए, दोनों मिला के 1,40,000 लोग मुझे फर्स्ट 2 कनेक्शन के अंदर इंडिया के दिखाई दे रहे हैं. आई वॉन्ट टू सर्च अ बिट मोर स्पेसिफिक. यहाँ पे देखिए ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन, अमेजॉन, ऐसे नाम आ गए हैं. मैं इसमें से 1-2 नाम सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो वैसा भी कर सकता हूँ, या नाम नहीं सिलेक्ट करना है तो फाइन. आई सी दिस इज एन अकाउंट्स मैनेजर एट आईसीआईसीआई बैंक, कल्याण में रहता है. कोई रोहन बरटके करके व्यक्ति है. आई विल गो एंड कनेक्ट विथ हिम. I will send him a message. I want to add a note. I'll add a note and I'll send him a message. I'll do done. He will send me yes, no. He'll connect and then I can talk to that person. I can ask him questions. See what he is doing. अगर आप सिर्फ देखना भी चाहते हैं कि अकाउंट्स मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक, मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस,
finance and accounting, Fujitsu Consulting Limited, looking for change. प्रेम कुमावत साहब change देख रहे हैं, accounts manager हैं at Pearson. Key accounts manager accounts at DFK International Campus, senior manager at InfoEdge, Naukri.com, senior manager at finance and accounts. So this is how you could search directly in LinkedIn and connect with that people. मैं नौकरी ढूंढने की बात नहीं कर रहा हूँ साहब, मैं आपके कनेक्शंस बनाने की बात कर रहा हूँ, जिससे कि आप अपना गोल बढ़िया सेट कर सकते हैं, आपका लॉन्ग टर्म गोल सेट कर सकते हैं. एंड दिस इफ यू डू, इट वुड हेल्प यू सेट योर लॉन्ग टर्म गोल वेरी करेक्टली. अच्छा लगा आइडिया? टाइप कीजिए गुड, ऑसम इन योर चैट. अब हम बात करते हैं कुछ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स की. ये देखिए साहब, आपका एक शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है जो कि 2021 का हो, जो कि एक प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट करने का हो, या फिर वो फर्स्ट जॉब अचीव करने का हो, राइट. वहां से आप फिर एक मिडिल टर्म गोल हो सकता है जो 2-3 साल आगे का हो, जिसके अंदर आप थोड़ा ज्यादा सैलरी की बात कर रहे हैं, कुछ चीजें खरीदने की बात कर रहे हैं, कुछ आपकी लाइफ की चीजें अचीव करने की बात कर रहे हैं. और लॉन्ग टर्म्स गोल सकते हैं 5 साल 10 साल आगे की गोल्स, 15 साल आगे की गोल्स जो आप सेट कर सकते हैं. सिर्फ ख्याल ये रखिएगा कि आप पहले एक लॉन्ग टर्म गोल सेट कीजिए, वहां से मीडियम टर्म, वहां से शॉर्ट टर्म गोल सेट करें तो ज्यादा बेहतर होगा. लेट मी जस्ट टेक एन एग्जांपल फॉर यू ऑल. इफ आई हैव अ लॉन्ग टर्म गोल, लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड टाइप अकॉर्डिंगली. मेरा एक लॉन्ग टर्म गोल है कि मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर 15 लाख रुपया सालाना सैलरी अचीव करना है, 1.5-2 लाख रुपया महीना बाय 2028. तो मेरा 2027 का क्या गोल होना चाहिए, 2025 का क्या गोल होना चाहिए, 26 का क्या गोल होना चाहिए, 2025 का क्या गोल होना चाहिए, 2024 का क्या गोल होना चाहिए, और शॉर्ट टर्म के अंदर 2023 का क्या गोल होना चाहिए, 2022 का क्या गोल होना चाहिए, 2021 का क्या गोल होना चाहिए. इस तरह से मैं ईयर डिफाइन कर दिया साहब. अब ईयर डिफाइन करने के बाद में 2021 का मुझे गोल सेट करना है. क्या गोल होना चाहिए सर मेरा 2021 का? कैन समबडी हेल्प? अगले साल कम से कम जॉब से शुरुआत हो जानी चाहिए, राइट. तो टू गेट अ जॉब, कोई भी जॉब चलेगा या स्पेसिफिक? टू गेट अ जॉब इन अकाउंट्स एंड टैक्सेशन, आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं चाहें तो. गेट अ जॉब इन टैक्सेशन, अकाउंट्स और फाइनेंस फील्ड, राइट. आपने बिल्कुल क्लियर 3 फील्ड अलग अलग डिफाइन कर दिए, राइट. विथ अ सैलरी ऑफ, सैलरी भी डिफाइन कर दीजिए, रेंज दे दीजिए, सैलरी रेंज 15K to 20K, 25K पर मंथ. और भी कुछ डिफाइन करना चाहते हैं? इन अ कंपनी, विच कंपनी, इन अ कम से कम लिमिटेड कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो. So you define that in a private limited company. Private limited company in which cities? In cities like Pune, Mumbai, Bangalore, और कुछ 2-4 नाम, Calcutta, etc. So something like this अगर आप define कर देते हैं कि this is what I have defined. स्पेलिंग को माफ कर दीजिएगा, नाराज मत होइएगा. But if I define something like this, this is my first goal. I have defined my salary, I have defined my role, I have defined which type of a company, and here. अब 2021 से 2023 पे आते हैं, 2022 नहीं करते हैं for sake of time. 2023 यानी 2 साल बाद मेरा क्या गोल होना चाहिए? चलिए साहब, 2021 में 15 से 25,000 सैलरी हो गया. अब क्या होना चाहिए सैलरी 2 साल बाद? मुझे पहुंचना है 15 लाख पे. 15 लाख यानी अराउंड 1.5 लाख रुपया महीना होना चाहिए. तो शुड आई इंक्रीज टू अराउंड 50,000, 30 to 50,000 रुपीज? सिर्फ चैट में टाइप कर रहे हैं, अगर आप बोलना भी चाहें तो बोल भी सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट. 30 to 50 के सैलरी होना चाहिए मेरा, डबल हो गया 3 साल के अंदर. कौन से फील्ड के अंदर आप चाहते हैं? ऐसा कोई फील्ड, यही फील्ड रहना चाहता है कि आप कुछ और फील्ड में स्पेसिफिक करना चाहते हैं? तब तक आप फिनेंस, इंश्योरेंस, ये फील्ड में घुसना चाहेंगे शायद. और शायद पब्लिक लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए. सो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, राइट. और तब तक आप चाहते हैं कि आप मुंबई पहुंच जाएं. चलिए मुंबई पहुंच जाएं. आपने कुछ 2-4 कंपनीज के नाम भी डिसाइड कर लिए.
कि भैया 3 साल के अंदर मुझे PwC या फिर जो वो बिग 3 या बिग 4 नहीं बोलते हैं, बिग 4 कंपनीज इन अकाउंट्स, उनमें से किसी एक फील्ड में होना चाहिए, मैकेंजी, PwC जैसे कंपनी, राइट? ये भी आपने डिफाइन कर दिया, बिग 4 कंपनीज लाइक PwC, मैकेंजी, इस तरह की कंपनी के अंदर मैंने होना चाहिए। चलिए ये भी डिफाइन कर लिया। वाह, सो ये मेरा 2 साल बाद का गोल हुआ। अब इसके आगे आप जो भी गोल सेट करेंगे ये मीडियम टर्म में आएंगे, आप इसको मीडियम टर्म में भी कन्वर्ट करके ले जाइएगा। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ऊपर, और 1 साल बाद यानी 2025 का मेरा एक गोल सेट करता हूँ कि 2025 में मेरा क्या होना चाहिए। तो 2025 में सैलरी मेरी 50 से 1 लाख के बीच में, 70 से 70-80 हजार के आसपास चलेगा। तो अराउंड 70K to 1 लाख रुपीज, तभी मेरा वो लॉन्ग टर्म गोल अचीव हो पाएगा ना, नहीं तो मेरा शायद वो नहीं अचीव हो। अभी तो मेरे को सैलरी मिल जाएगी, बाद में धीरे धीरे स्लो होती जाएगी, बाकी सब कुछ ठीक है। क्या पब्लिक लिमिटेड से मैं मल्टीनेशनल में जाना चाहूंगा, MNC और पब्लिक लिमिटेड, राइट? अब मैंने मुंबई फिक्स कर लिया, अभी यहाँ मुंबई में सेटल होना है, या पुणे फिक्स कर लिया, पुणे में सेटल होना है, और व्हाटएवर वे आज से 2 साल 3 साल आगे की बात हम कर रहे हैं। नाउ दिस इज समथिंग हाउ यू सेट अप योर गोल। आपके पास एक लॉन्ग टर्म गोल है, उससे आपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट किया। एनी क्वेश्चंस एनीबडी हैज हियर, वांट्स टू से समथिंग, कुछ पूछना चाहता है, बोलना चाहता है, व्हिच यू वांट टू ब्रिंग फोर्थ, फील फ्री टू से समथिंग। Make sense? So this is how you set your goals. और सिर्फ गोल सेट करने से अचीव नहीं होते हैं, ये ख्याल रखिए। मेरे पास में आपकी 5 से 7 मिनट है, और अगर आप परमिट करें तो हम 10 मिनट एक्सटेंड कर सकते हैं। कैन वी एक्सटेंड फॉर 10 मिनट्स मोर? इज इट पॉसिबल? डू आई हैव योर परमिशन टू एक्सटेंड? थैंक यू। सो अगर yes, आप अपना गोल, सर, थैंक यू सर। सर प्रतीक मोरे एंड विकास थोरवे ने हैंड रेज किया सर, शायद उनको कुछ बात करना है। कभी भी कर सकते हैं सर। एनीवन हु वांट्स टू टॉक कैन अनम्यूट देमसेल्फ एंड टॉक एट एनी गिवन टाइम। मैंने किसी को भी म्यूट करके नहीं रखा है, प्लीज। ये छोटे बच्चों वाला क्लासरूम नहीं है। सर प्रतीक मोरे बोल रहा हूँ। बोलिए सर। सर जब मैं अभी मेरा एक 2 साल में गोल है कि मुझे एक एज अकाउंट मैनेजर करना है, तो कम्युनिकेशन स्किल कितना ये रखता है, मायने रखता है उसमें? बढ़िया क्वेश्चन है साहब। क्योंकि क्या होता है सर, क्योंकि हम मेरे पास 1 साल मतलब एक्सपीरियंस है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल नहीं हो पाता, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाता है सर। इस पे कुछ एक क्वेश्चन पूछूं प्रतीक, गुस्सा नहीं होगे? हाँ। कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? हाँ, जा सकता है सर। किया जा सकता है। कितना वक्त लगेगा, कितने साल लगेंगे? 4 महीना, 4-5 महीने। पक्का? हाँ। जनवरी में बात करें आपके साथ? हाँ सर, लेकिन सर ऐसे बच्चे जो मैं अभी मैं SY में हूँ, मेरा इतना एज नहीं है, तो डर जाते हैं। हम इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो डर जाते हैं। हमसे बड़े बड़े मतलब मैरिड पर्सन आते हैं, तो हम डर जाते हैं। सो इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो डर जाते हैं, सो कॉन्फिडेंस कम होने के क्या रीजंस होते हैं? यही सर, कम्युनिकेशन स्किल की वजह से होता है। कम्युनिकेशन स्किल एक, और कोई रीजन? डर नॉर्मली आपका होता है तभी होता है जब कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो। अगर कोई चीज आपको करना बहुत अच्छे से आती है तो कॉन्फिडेंस कम हो सकता है? नहीं सर। तो आपका स्किल अच्छा होना चाहिए। आपको आपके स्किल पे कॉन्फिडेंस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनीबडी कैन आंसर यार। प्रतीक को अकेले को ऐसा कटघरे में आपकी अदालत में नहीं खड़ा कर रहे हैं, कोई भी जवाब दे सकता है। जी प्रतीक, स्किल इंप्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में? हाँ सर, उसके नॉलेज इंप्रूव करना पड़ेगा। साइली चैट पे बोल रही है रीड द मैगजीन, प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके बारे में। हाँ बराबर। उसके ऊपर एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, थोड़ा सा या थोड़ा ज्यादा, तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। बात खत्म सर। ये 3 चीजें करना आज से शुरू करें। 4 महीने का आपने टाइम लिया है, जनवरी में हम बात करेंगे आपसे। ओके सर, राइट, यू कैन ऑलवेज डू दैट।
आपको अगर इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो यार वो सब टाइटल के साथ में इंग्लिश मूवीज देखो। अब तो सबके पास वेब सीरीज है और सब वेब सीरीज के अंदर नीचे वो सब टाइटल आता है। आप बिल्कुल बिंदास सारी पिक्चरें देखिए और बोलना सर ने बोला है। और इंग्लिश पिक्चर सब टाइटल्स को पढ़ पढ़ के साथ साथ में उनको सुनो, जिससे कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज का रीडिंग और लिसनिंग इंप्रूव हो, और रीडिंग और लिसनिंग इंप्रूव होने के बाद में पॉज करो और बोलना शुरू करो, और आपको बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे, वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी। और फिर उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऐप्स है स्पोकन इंग्लिश के जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आप लगा सकते हो, ऑन कर सकते हो और उसके साथ कर सकते हो, राइट। सो यू कुड यूज दोज यूट्यूब के वीडियोस जो स्वप्नाली कह रहे हैं चैट के ऊपर, और यू कुड यूज दोज एप्स विच आर फ्री, एंड यू कुड यूज योर वेब सीरीज यार इंग्लिश में देखो और इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखो, तो वो सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे अपने को इंग्लिश समझ में आने लगेगी और साथ में बोलना शुरू कर देंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू प्रतीक, बढ़िया। सो जब भी आपको किसी को मूड हो कुछ पूछने का तो हाथ मत खड़ा कीजिए, डायरेक्ट अंदर आके बात कर सकते हैं। चलिए, सो टिल देन आई विल टेक वन मोर फाइनल स्लाइड फॉर यू टू ब्रिंग अबाउट हाउ टू यू अचीव अ गोल। और ये एक्सरसाइज आपको आज ही करनी है, ये वेबिनार खत्म होने के बाद। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। करना क्या है, हम लोग गोल तो सेट कर लेते हैं, गोल सेट करके लिख लेते हैं कागज पे लिख के चिपका लेते हैं कई जगह पे, आप उसको मोबाइल पे सेट कर लेते हो, डेस्कटॉप बना लेते हो, वॉलपेपर पे बना लेते हो, सब कुछ कर लेते हो सर, पर बिना एक्शन लिए सिर्फ और सिर्फ ये कहना कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे होता नहीं है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। एंड व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू डू इट? द फर्स्ट स्टेप टू डू इट इज टू क्रिएट अ टू डू लिस्ट। यानी आपका गोल अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उसका एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज बनाना शुरू करना पड़ेगा। यू विल हैव टू राइट एज मेनी एक्टिविटीज एज यू कैन। कीप राइटिंग डाउन द टास्क विच यू वांट टू डू। जरूरी नहीं है वो टास्क आज का हो, वो टास्क आज से 6 दिन बाद का हो सकता है, 7 दिन बाद का हो सकता है, 1 महीने बाद का हो सकता है, 1 साल बाद का हो सकता है। लिखते जाइए वो सारे टास्क जो आपके दिमाग में आते हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, और वो करने के लिए कितना वक्त लगेगा करने के लिए, राइट। डू नॉट राइट सब गोल्स इन इट। कई बार ऐसा होता है कि मुझे ये चीज अचीव करनी है तो उसके लिए ना मुझे ये सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, तो सर्टिफिकेशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा वो लिखिए। सर्टिफिकेशन लेना है इज अ सब गोल, सर्टिफिकेशन अचीव करना है इज अ सब गोल, इज नॉट अ टास्क। सर्टिफिकेशन अचीव करने के लिए आपको क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेगी वो लिखिए। मुझे एडमिशन फॉर्म भरना पड़ेगा, मुझे इंस्टीट्यूट ढूंढना पड़ेगा, मुझे फीस भरनी पड़ेगी, मुझे क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे, वो सब कुछ लिखिए। और उस काम को करने के लिए कितना वक्त लगेगा वो लिखिए। तो राइट डाउन हाउ मच टाइम यू वुड नीड फॉर डूइंग ईच एंड एवरी टास्क। अगर वो समय बहुत बड़ा हो जाता है, 12 घंटे 10 घंटे का समय हो जाता है फॉर अ सर्टेन टास्क, उसको छोटा कीजिए, उसको 1 घंटे का कीजिए, उसको आधे घंटे का कीजिए। मेक इट इनटू अ स्मॉलर टास्क विच यू वांट टू डू, एंड दिस लिस्ट ऑफ टास्क is important for you to complete. Then write down an activity if you think you have to take permission. वो भी एक्टिविटी लिख लीजिए जिसकी आपके पास में परमिशन नहीं है। कई बार लगता है बच्चों को कि नहीं माँ बाप से पूछना पड़ेगा, बाद में पूछेंगे। एक्टिविटी लिखने को कहा है, एक्टिविटी लिखने से मम्मी पापा कोई आपको डांटेंगे नहीं, कोई आपको जेल में नहीं भेजेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। राइट डाउन ऑल दोज एक्टिविटीज विच इज पॉसिबल, एंड देन मे बी अराउंड 15, 20, 30, 40 जितनी एक्टिविटीज लिख सकते हो वो सारी एक्टिविटीज लिखो जो करने से आपको गोल अचीव कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपकी पहली 4-5 एक्टिविटीज काफी है, आपकी जो 20th एक्टिविटी है वो सबसे इफेक्टिव एक्टिविटी हो सकती है, ये भी रिसर्च ने बताया है, right? So you have to really write down around 30, 40, 50, as many as you can, list of things to do to achieve this goal. Now, if you do not make this list, sir, मुझे कुछ करना है, but करना क्या है ये पता नहीं, यही आपके दिमाग में चलता रहेगा। Is this what you want to do about your life? I don't think so. आप लोग सब इस वेबिनार में आए, अभी आप 90 मिनट से यहाँ पे हैं, और उसका रीजन एक ही है कि आप कुछ वाकई करना चाहते हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं। अब आपने 90 मिनट्स में जान तो लिया है, यू हैव नोन व्हाट यू वांट टू डू। नाउ इज द क्वेश्चन वेदर यू आर रेडी टू डू समथिंग अबाउट इट। सो टू डू समथिंग अबाउट इट यू हैव टू मेक दिस लिस्ट, एंड वंस दिस लिस्ट इज रेडी देन आइडेंटिफाई दैट वन थिंग विच यू कैन डू टुडे। और आज के आज वो एक चीज आपने करनी है,
और आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर बने थे यहाँ पे आने के लिए, उस व्हाट्सएप ग्रुप में ये लिस्ट डालिए और उसके बाद वो एक्टिविटी जो आप करने वाले हैं उसको हाईलाइट करके डालिए और वो एक्टिविटी आज करने के बाद में लिखिए आई हैव डन माय एक्टिविटी. So this is something which you should do today. If you do this today, we are your accountability partners. We would support you in this journey to achieve your goal. वो एक goal achieve करने के लिए हम आपको support करेंगे. So the exercise today is write a goal on a piece of paper. Write down 20, 25, 30 activities which are required to be done to achieve that goal. और उसमें से एक activity को highlight कीजिए, underline कीजिए, highlight कीजिए और वो आपके WhatsApp group में post कीजिए और वो activity आज कर डालिए 12 बजने के पहले रात को. And once you do that activity, you have taken the first step. Now comes the next step of planning. इसके बाद फिर आप उसको प्लानिंग कीजिए, इम्पोर्टेंट क्या है, अर्जेंट क्या है, क्या चीज का डिपेंडेंसी है, कितना समय आपके पास है, कब आपका एनर्जी सबसे बढ़िया होता है, कौन सी चीज आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, ये सब कुछ प्रायोरिटाइज और शेड्यूल करने में इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं. So look at these 6 parameters before you actually get into prioritizing and scheduling. And finally, remember one very important thing, that you have to plan this in your week. कि अगले हफ्ते में कि आज के बाद every day किस समय से किस समय के बीच में मैं क्या करूंगा. You have to actually write and put it in a plan on a day-to-day basis. Remember, you should have a to-do list today कि आज मैं क्या करूंगा. You should have a weekly, monthly, 6 monthly, yearly, a specific date wise. इस तरह के आपके एक्टिविटीज आपके कैलेंडर में मार्क होने चाहिए. अब तो सबके पास मोबाइल है, you have a calendar app, you can mark it there. You should put all this stuff and remember to do at least one thing every day. आपका गोल अचीव करने के लिए एक ही चीज याद कीजिए कि आज मुझे कुछ तो काम, कोई तो स्मॉल एक्टिविटी आई हैव टू डू एवरी डे. If I do not do something every day, I will not be successful. अगर मैं मेरे गोल के लिए कुछ ना कुछ रोज नहीं करूंगा, अगर रात को सोते वक्त before I go to sleep, if I don't ask myself how do I feel happy and excited कि आज मैंने कुछ तो किया मेरी गोल की तरफ या मैंने कुछ नहीं किया. अगर मैंने कुछ नहीं किया तो उसको मार्क करके रखो कैलेंडर में. And look at that calendar, see those red dots and then try and convert them into green dots. जिस दिन मैंने कुछ अच्छा किया मेरे गोल के लिए उसको ग्रीन कलर में मार्क कीजिए and then you will feel start super excited and super happy and you would be able to achieve something. So जिसने मुझे अभी थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था, विकास आई बिलीव, और somebody जिसने पूछा था कि मुझे मेरा कम्युनिकेशन स्किल के लिए कॉन्फिडेंस कम है, तो आज अगर मैं रात को एक मूवी देखता हूँ या एक 5 मिनट की मूवी देखता हूँ जिसमें मैंने कुछ इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखे और उसके बाद वो सबटाइटल्स में से 1-2 सेंटेंस बना के मैं बोलता हूँ और रिकॉर्ड करता हूँ, दैट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच यू कैन डू टू स्टार्ट इंप्रूविंग योर इंग्लिश, टू स्टार्ट इंप्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल. एंड दैट इज योर फर्स्ट थिंग व्हिच यू डू टुडे एंड देन यू से एवरी डे आई विल डू दिस. हर रोज मैं मेरा 1 मिनट का इंग्लिश के अंदर ऑडियो का रिकॉर्डिंग करूंगा, मैं किसी को नहीं भेजूंगा, अपने लिए करूंगा और खुद सुनूंगा. Your first step is achieved and then you would definitely keep on doing this and achieve your goal. And this is what you have to do every day. Goal setting एक part हो गया, list बनाना second part हो गया, third thing है हर रोज कुछ ना कुछ करना to achieve your goal, right? So this is what I have for you for setting and achieving goals. If you have questions, if you want to talk about it, if you want to discuss something, I'm open for your questions and discussions. Yes, please. You could mute, unmute yourself, talk about it as and when you want to, and we can do a discussion. Vinod sir, any questions on behalf of your students if you want to ask? Yes, students, काही प्रश्न तुमचे? आकाश, अथर्व, भाविका, पायल, निशा, पूजा, प्रतीक, साइली. हाँ सर. Yes.
येस, तुम्ही विचारू शकता प्रश्न. सबको भूख लग गई है, they want to go and have their lunch. चलिए. ओके, आय थिंक सर कोणा प्रश्न नाही स्टुडंट कडून. आणि थँक्यू सो मच सर फॉर प्रोव्हाइडिंग सच अ वंडरफुल सेशन्स टू माय स्टुडंट्स. आणि ह्या सेशन मधून डेफिनेटली त्यांना त्यांचे गोल्स, त्यांचे करिअर प्लॅन्स अचीव्ह करण्यासाठी याचा डेफिनेटली फायदा होईल. आणि असंच आम्ही तुम्हाला परत एकदा सेशनसाठी परत बोलत जाऊ. ह्या सेशनसाठी आम्ही खूप दिवसापासून मी पर्सनली वाट बघत होतो, कारण हा लास्ट सेशन आपला 2 वर्षापूर्वी झाला होता ICA कोथरूड मध्ये. आणि त्यानंतर त्या मुलांचे करिअर्स प्लॅन्स गोल्स खूप चांगल्या पद्धतीने त्यांनी अचीव्ह केलेला आहे. थँक्यू सो मच सर वेळ दिल्याबद्दल परत एकदा. थँक्यू विनोद. ओके, थँक्यू स्टुडंट्स. बाय बाय. Bye sir, thank you so much. Thank you.